Hello students, so we will continue the topic that is hyperconjugation, and in hyperconjugation we just study the type of hyperconjugating structures or the compound in which hyperconjugation will take place, that is carbocation alkene free radical. Okay, so first of all, the condition for hyperconjugation is this, that carbon connected to the carbocation alkene of free radical should be sp3 hybridized. Okay, so suppose we have a carbocation, so the carbon attached to this carbocation should be sp3 hybridized. Okay, or we are taking the example of alkene, that is CH2 double bond CH2, so 2 3 4. Okay, so carbon attached to this alkene carbon should be sp3 hybridized, or we have the in the same way free radical, then the carbon should be sp3 hybridized. So this is sp3 hybridized carbon. This carbon is also known as the alpha carbon, means the carbon next to the carbocation or the alkene carbon or the free radical carbon, it will be the alpha carbon. Okay, so it is what? It is alpha carbon. Alpha carbon, and the hydrogen attached to this carbon will be alpha hydrogen. So it is alpha hydrogen. These are alpha hydrogen. Okay, so we should have the alpha hydrogen for the hyperconjugation. So structures will be formed with the help of alpha hydrogen. If alpha hydrogens are not there, the hyperconjugating structure will not be possible. Okay, so first we will go with the hyperconjugation in carbocation. Hyperconjugation in carbocation. Okay, now we will take the example of carbocation, that is C bond CH2. Here it is the carbocation, so it is have the deficiency of electron, so positive charge is here. Okay, what do you understand by this positive charge? Means earlier the structure of this compound was like CH2, and suppose a more electronegative atom were attached with it. Okay, like this, but it is more electronegative than carbon, so it takes the electron of this bond and go away, and it will get the positive charge because of the deficiency of the electrons. Okay, so carbocations are formed. Now see how the hyperconjugating structure will form with this compound. Okay, so we have this structure. Next, suppose this hydrogen, in hyperconjugation the shifting of sigma electron takes place. Okay, but it is also called the no bond resonance, because bond resonance will not be there. So if this hydrogen gives its sigma electron to the carbon, okay, because it is electron deficient, then the structure will be C. The two hydrogen will be at same position, H, and this sigma electron shift here, so it will have the double bond CH2, and now it is full of electrons, so positive charge will not be here, and it will have the positive charge. Means this hydrogen which gave its sigma electrons to the nearby deficient species, it will have the positive charge. Now it also may be possible that this hydrogen is not giving its sigma electron, this one is giving, so the structure will be, see, this hydrogen will be the same, the second one is donating its electron, it will get the positive charge, and this will be like this, and double bond will be here CH2. Okay, again may be possible that third hydrogen will donate its sigma electron, the structure will be, the two hydrogen will be at the same position, the third one is donating its electron, so the structure will be with double bond CH2. Okay, like this. So this is hyperconjugation in carbocation. Now we will go for the hyperconjugation in the
alkene. Now see hyperconjugation in alkene. So we have a structure of alkene. Then how hyperconjugation will take place? Suppose this pi electron shift here. Then what will happen? This hydrogen will give or donate sigma electron to this carbon. Then what will be the structure? C, H will have the positive charge. Now H, here we will have the double bond, and here we have CH2. Okay, and minus charge will be here. Why? Because it accepted this pi electron. Okay, so it will have the minus charge, and this species will get the positive charge. Now what will happen? Again we will do the same as at carbocation. Maybe possible the second hydrogen will donate this electron to the carbon, this carbon. So next we will have the structure, that is C. The first hydrogen will be as it is, second one is donating, so it will get the positive charge here like this, double bond CH, CH2. Okay, minus. Maybe possible third is giving its electron, so the structure will be the two hydrogen will be at same position, third will get the positive charge, double bond CH, CH minus. Okay, so it will be the hyperconjugating structure for the alkene. So how many structures are possible? The number of alpha hydrogen will be equal to the conjugating structure, hyperconjugating structure. Okay, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 3 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 एंड 3. वी विल नॉट काउंट दिस, जहाँ से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुए वहीं से काउंट करेंगे. उधर भी 3 ही थे अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 स्ट्रक्चर बने. ठीक है ना. अगर ज़्यादा होंगे मीन्स कार्बोकेटाइन एल्कीन या फिर फ्री रेडिकल वाले कार्बन से दोनों तरफ अगर अल्फा कार्बन अटैच्ड हैं, ओके, देन उसके हम ज़्यादा स्ट्रक्चर फिर उसी हिसाब से बना सकते हैं. ठीक है. चलिए अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल. नाउ सी दिस इज फ्री रेडिकल बिकॉज वन ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर. सो व्हाट विल हैपन इफ this hydrogen will share its sigma electron or donates its sigma electron towards this carbon, then what will happen? There are 2 electron with each hydrogen. Now it is giving its electron to this carbon, then what will happen? This one electron pair with this one electron and form the double bond, and this one electron left with the hydrogen. So what will we have? We have H with one electron, H will be like this, here double bond and CH2. okay, why? Because इसका एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के पास ही रह जाता है, तो इसलिए वो एक रेडिकल की फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर सेकेंड वाले के साथ भी हमें सेम यही करना है, तो इस हाइड्रोजन को एज इट इज़ रखिए, यहाँ पर ही फ्री रेडिकल, दिस इज CH2. ओके. नेक्स्ट थर्ड वाले के लिए करिए, ये 2 हाइड्रोजन विल बी एट सेम पोजीशन, H डबल बॉन्ड CH2. ओके. सो इट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन इन व्हाट? कार्बोकेटाइन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल. ओके. Now the question based on the hyperconjugation, the question may be like this कि बताइए इन सारे कंपाउंड में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है. ठीक है ना. तो हम कैसे बताएंगे? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. अब देखिए, द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. सो दिस कार्बन विच इज़ कार्बोकेटाइन is attached with the 3 carbon. So these 3 carbon are the alpha carbon, and the hydrogen attached to these carbon is alpha hydrogen. So how many alpha hydrogen are there? 3 to the 6, 9. So 9 alpha hydrogen are there here, 6 alpha hydrogen here, 3 alpha hydrogen here, no, 0. ओके. यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो सबसे ज़्यादा
HC स्ट्रक्चर भी किसके बनेंगे, इसके बनेंगे। तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसी वाले कंपाउंड की होगी। तो मोर स्टेबिलिटी ए की, देन बी, देन सी, एंड देन एट लास्ट डी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Now we will see the electromagnetic effect, and it is the last electron displacement effect which we are studying now. Okay, तो electromagnetic effect E से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, E लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए जब किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, एंड वी आर कंसर्न विद द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स तो यही हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और ये किसी अटैकिंग रिएजेंट से एक्सपोज होते हैं, देन व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्डिंग पेयर होते हैं ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, दे कम्प्लीटली ट्रांसफर टू द वन इलेक्ट्रॉन टू द अनदर। वो कम्प्लीटली एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। First of all, we should understand the electromagnetic effect is a temporary effect. It is only takes place at the in the presence of the attacking reagent. जब तक कोई attacking reagent नहीं होता, electromagnetic effect वहाँ पर नहीं होता है। जब attacking reagent present होता है, और but condition is what, there should be pi electrons. पाई इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं होता है। ठीक है, तो ये टेम्पररी इफेक्ट है। जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा तभी ये इफेक्ट शो होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट शो नहीं होगा। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव द एग्जांपल दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। सपोज वी आर हैविंग द अटैकिंग रिएजेंट। अभी आगे हम बात करेंगे और डिटेल में, अभी आप इतना समझ लीजिए, ये कोई रिएजेंट है जो अटैक करने आया इस स्पीशीज़ पे। ओके, suppose these pi electron in the presence of attacking reagent transfer from here to here, then what will happen, the new compound will be CH2 with single bond CH2, and because it accepted the electron, it will get the negative charge, and it donates the electron, so it will get the positive charge। ठीक है, तो जहाँ से ट्रांसफ़र हुए वो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिस कार्बन के पास गए वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब हमारे पास सिमेट्रिकल स्पीशीज़ होती हैं तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसको राइट साइड में कराया, आप इसको लेफ़्ट में भी करा सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर करा देंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। करके देख लीजिए, यहाँ पर कोई अटैकिंग रिएजेंट ले लीजिए, और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसने लिए तो माइनस चार्ज, और इसने दिए तो इसके पास प्लस चार्ज। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल स्पीशीज़ के केस में जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ईदर डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इफ़ पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हियर और हियर, दोनों तरफ हो सकते हैं, सिमेट्रिकल है ये हमारा स्पीशीज़। कोई अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस लीजिए यहाँ पर, तो CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, and it will get the negative charge and it will get the positive charge। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्पीशीज़ कैसी हो, असिमेट्रिकल हो। ठीक है, असिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए दिस एल्काइल ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। ये अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन दे। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है तो इसका जाहिर सी बात है कि इधर तो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की होगी नहीं, उधर पॉसिबल ही नहीं है कि इधर होना शुरू हो। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इधर से इधर की तरफ होगी। वाई, बिकॉज CH3 दैट इज़ अल्काइल ग्रुप, एंड अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और हमने लिया कोई अटैकिंग रिएजेंट, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, दैट इज CH3 CH CH2, एंड इट विल गेट द माइनस चार्ज, इट विल गेट द प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा बन गया नई स्पीशीज़। अब एक तो हमने असिमेट्रिकल के केस में ये देख लिया, दूसरा हम देखते हैं। देखिए सपोज वी हैव द कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है, अगर ऐसा केस हो जहाँ पर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, देन व्हाट शुड बी हैपन, जो हमारा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो उधर ट्रांसफ़र करेंगे जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो O इज़ मोर O is more electronegative than the carbon, so this pi electron will shift towards O
तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा C विथ पॉजिटिव चार्ज, O विथ नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ सी नेक्स्ट कंपाउंड इज C ट्रिपल बॉन्ड एंड हियर अटैकिंग रिएजेंट लीजिए। ओके, N is more electronegative than carbon, pi electron will shift here. The compound will be डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप कुछ पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कुछ पॉइंट हैं। पहला कि ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा, ये मल्टीपल बॉन्ड्स में ही होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जहाँ होते हैं वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है। तीसरा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। एंड द लास्ट वन, ये किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, राइट। अब चलिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के वो 2 होते हैं, ठीक है। एक तो E+ एंड E-। सभी में हम यही पढ़ते आ रहे हैं, मीजोमैग्नेटिक भी, इंडक्टिव भी, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी E+ और E- होता है, ठीक है। नाउ प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। इसको देख लीजिए कि प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। सी देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवार्ड्स द साइड वेयर अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उस साइड की तरफ शिफ्ट होता है, वहाँ पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने वाला होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, वी हैव एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हमने लिया E+, ठीक है। अब दिस E+ इज़ इलेक्ट्रोफाइल, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं, तो वो वहीं पर जाकर अटैक करती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एरिया होते हैं या डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सपोज़ ये हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन, अब मैंने क्या बताया था, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होगा, यहाँ हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है ना E+, ये वहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ शिफ्ट हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और जहाँ से गए हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास तो खुद डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, तो जाहिर सी बात है ये वहीं जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, ठीक है। तो ये पहुँचा हमारा CH3 CH CH2, और यहाँ पे हमने अटैच कर दिया E को। किसने दिया इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने दिया। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा वो कहाँ जाके अटैच हुआ, इस कार्बन के साथ, इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने लिया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ये 2 एटम लिए हैं हमने, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल H+, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो O की तरफ आ जाएंगे, और O की तरफ आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर, और अगर ये O की तरफ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, और ये हमारा इसी के साथ अटैच हुआ जाकर, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, C बॉन्ड OH, और इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइनस इफेक्ट देखिए। अब देखिए, प्लस ई इफेक्ट में हमने देखा कि हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो वहाँ पर जाकर अटैक करेगा जिस तरफ या जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ माइनस आई इफेक्ट में जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वहाँ अटैक करेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, जहाँ से, फ्रॉम, ओके, और टुवार्ड्स विच वो वहाँ पर करेगा। तो देखिए, अब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि इस वाले कार्बन से किधर गया, इधर की तरफ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, तो ये हमेशा किसके सर्च में रहती है, ऐसी स्पीशीज़ के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये ई जो है वो इस पर अटैक कर लेगा ईजिली जाकर, ठीक है। तो देखिए, CH3 CH, ई हमारा इधर आ गया, और ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो गए, नेक्स्ट वाले कार्बन पर। तो देखिए CH2, और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है।
Now see, this is a tagging reagent with negative charge, means it is a electron rich species. Okay, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डेफिशिएंट हो गया, तो ये जो हमारा साइनाइड ग्रुप है इस पर जाकर अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा CnO विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चर। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, और जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं ना तो इसी इफेक्ट का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को किस एटम से किस एटम की तरफ शिफ्ट होना है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, फिर अटैकिंग रिएजेंट को कहाँ जाकर अटैच होना है, ये सब डिसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से ही होता है। अब इसको अगर हमें पता है तो हम आसानी से रिएक्शन मैकेनिज्म में ये पता कर सकते हैं कि हमको किस एटम को कहाँ पर जाकर अटैच कराना है। ठीक है, अगर हम अटैचमेंट ही ठीक नहीं करवाएंगे एटम्स का तो हमारी रिएक्शन भी गलत होगी पूरी, और हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कहाँ से कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तब भी हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एकदम गलत हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करता है। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ होगी, कौन सा एटम किसके साथ जाकर अटैच होगा, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से ही क्या होता है पता लगता है। ठीक है, देखिए हम एक और एग्जांपल लेके लेते हैं इसको। सपोज देखिए ये हमारा कोई अटैकिंग रिएजेंट है, अगर ये स्प्लिट हो मीन्स ये हो सकता है कि ये प्लस ई इफेक्ट शो करेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और सपोज ये माइनस तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हैं हम वाटर। वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, इस तरीके से माइनस प्लस, ऐसे होता है ना। अब देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जाहिर सी बात है पाई इलेक्ट्रॉन को किधर शिफ्ट होना है, नाइट्रोजन की तरफ। अब कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, कार्बन हो गया क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, इसके पास। तो ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, CH3COH, सॉरी ये हो गया हमारा क्या, डबल बॉन्ड NH, यही हुआ ना। तो हमें ये पता चला ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कि हमको किस एटम को कहाँ पर अटैच करा के रिएक्शन को कराना है, तो इससे हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये हमारा रिएक्शन बतानी है किस तरीके से होगी। देखिए ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये तो एल्काइल को भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इधर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता इलेक्ट्रॉन्स का, इसी तरफ डायरेक्शन में जाएंगे। तो सपोज ये इधर गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ये साइनाइड यहाँ के अटैच होगा, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से यहाँ के अटैच होगा। तो हमारा कंपाउंड बनेगा क्या, CH3CH, यहाँ पर करिए CN को अटैच, और यहाँ पर करिए क्या हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया कंपाउंड, ये हमें किससे पता चला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से। ओके, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन के मैकेनिज्म हम करा सकते हैं। तो आफ्टर दीज इफ़ेक्ट्स और टर्म्स जो हमने अब कंप्लीट किए इस चैप्टर में, इसके बाद जो एक्सट्रैक्शन जो है बाकी का पार्ट जो है वो रिड्यूस सिलेबस में है दिस ईयर। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। तो हम नेक्स्ट वीडियो से अब शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ओके, थैंक यू सो मच।